کیا کہنے. اچھا ہوا یہ کہ جزدانی صاحب, ڈاکٹر خالد سہیل صاحب, بہت ہی رچ گفتگو ہوئی, اور سچی بات یہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا میں اسی طرح کی ایک نثر کا ٹکڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بہت کم ایسا ہوتا ہے زندگی میں تنقید لکھتا ہوں, لیکن میرے ساتھ یہ آج دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ مجھے ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کا مضمون پڑھنا پڑا زہرہ زبیری صاحبہ کی تقریر میں. سائمہ زیدی صاحبہ کی دوست ہے, حملہ ہو گیا آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نہ قبلہ کو آ گیا نام لڑائی میں اگر وقت, تو وہ مجھے ایک تحریر پڑھنے کا اتفاق ہوا. اب میرا دل مجھے پہلی دفعہ ایسا ہوا, مجھے یوں لگا کہ یہ میں نے کیوں نہیں لکھا, اتنی خوبصورت تحریر. تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور جس فضا کو جزدانی صاحب نے قائم کیا ہے اسی کو یہ آگے لے کے جاتا ہے, اس فضا کو اور رچ کرے گا. ان کی مداح ہیں, دوست ہیں, مہناز ان کا نام ہے. دیکھیے کہاں سے بات شروع کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے سائمہ زیدی نہ ایریکا یونگ کی طرح نیکڈ آشاؤں کی پرچارک ہے, نہ سلویا پلاث کی طرح بے مقصد گنجل کھولنے والی پگلی عورت, نہ پروین شاکر جیسی ہر دل کی ترجمانی میں منہمک روح, نہ کشور ناہید کی طرح مردوں میں سہیلیاں تلاش کرنے کے خبت میں مبتلا خاتون. کمال ایریا ہے کیا کہنا, اور کس طرح سے یہ ڈیفائن ہوا ہے. نہ کشور ناہید کی طرح مردوں میں سہیلیاں تلاش کرنے کے خبت میں مبتلا خاتون, وہ تو فہمیدہ جیسی بدن دریدگی سے بھی الرجک نظر آتی ہے. سائمہ میں کیا ہے جو باقی دنیا میں نہیں؟ شاید اس کی معاصر تمام تر شاعرات نیم شاعرات ہیں, اور یہ پگلی پوری. واہ کیا کہنا ہے, کیا بات ہے. اس کے یہاں اظہار اپنی شائستہ ترین شکل میں تہذیبی ورثے کی طرح تمام تر اوریجنیلٹی کے ساتھ محفوظ ہے. مجھ پراگندہ طبع سے ملنے آئی تو مجھے جان کے لالے پڑ گئے. سوچ کے ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ اس فردوس گوش اور جنت نگاہ کی توازن کیسے کر پاؤں گی. سائمہ کے بارے میں ایک بات اتنی بیان ہے کہ کرتے ہی بنتی ہے, اور وہ ہے اس کے اپنے سرکل کے لوگوں سے شدید جڑت, اتنی مغناطیسی کشش کے باخدا میں اس کے شہر میں آ کر ہل تک نہیں پائی. حمید نسیم ہوتی تو فلم سٹار نیلو کے آئینے میں اسے کھوجتی, داؤد رہبر ہوتی تو اس کے امیر کی ابلاغ کے لیے کوئی مذہب ہی بدل لیتی, یا اسے کسی راگنی یا ٹھمری میں آوازیں دیتی. سائمہ شہد مقال ہے, مگر شاعری کے پرستان کی پری والی شناخت زیادہ سیکل ہے. دیو بھیا تو ایک طرف موصوفہ تو کسی شہزادے کو بھی خاطر میں نہیں لاتی. غالباً میرے ساتھ کسی چیٹ کے ریئلٹی شو میں فرمانے لگی, مہناز یارا شاعر کو شادی وادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایریا. ڈاکٹر صاحب کا ایریا. مہناز یارا شاعر کو شادی وادی نہیں کرنی چاہیے, بس خود کو اس حیرت سرائے میں کھوجنا چاہیے. شادی ایک پخ سے کم نہیں. مجھے اس پخ سے وہ مظفر علی سید والا پخ یاد آ گیا, اور مجھے ڈھیر ساری ہنسی آ گئی. حضور فرماتے ہیں نئے خچر کو سدھانے اور کام میں ڈالنے کے لیے کوچوان اسے اپنے ریڑے کے پیچھے باندھ کر ہر طرح کی سڑکوں پر بھگاتے ہیں کہ کمسن بالا ان کھڈوں وڈوں سے اچھی طرح مانوس ہو جائے. تو دوستوں سجنوں
देवियों, साइमा के लिए शायरी अमृत धारा है, मगर मंटो वाली नहीं कि ये लत किसी मुतमव्वल को लगाकर बाद में उसके साथ लाहौर की सड़कों पर बहकने का सामान किया जाए। साइमा शेर को सोचते सोचते भूखी सो जाएगी, मगर इस नौ की पेशबंदी नहीं करेगी। साइमा ज़ैदी के लिए मुस्तफ़ा ज़ैदी का हवाला कम से कम मेरे लिए तो नाकाफ़ी है, अगरचे साइमा की कुछ नज़में खामखा गज़लिया आहम का भारी गरारा पहन लेती हैं। बहुत अच्छी। खामखा गज़लिया आहम का भारी गरारा पहन लेती हैं। मुझे ये कहने में सहूलत ही सहूलत है कि मेरी सहेली शहर में मतन की नज़ाकत और लताफत की असीर है। ऐसे ऐसे नाजुक जोड़ लगाती है कि जज्बा और एहसास की मौजूदगी आंच देने लगती है। साइमा ने हमेशा खुद को शायरी बनाया है, अपनी महबूबा भी, और ये आप ही है, ये आप ही बेहुनर पेशा लोग जानते हैं कि शेर में खुद को कंपोज करना जान जोखिम का काम है और रवायती मक्खीबाजी आसान तर है। साइमा ऐसे फरसूदा सहूलतों को पांव तले रौंदने या ट्रैश कैन में फेंकने की कायल है। मैं परवीन शाकिर की शेरी खानदगी की बड़ी कायल हूँ, मगर साइमा की गज़लें साइमा से सुनने के बाद लगा इस कड़े फन में भी साइमा परवीन की ज़रा याद नहीं आने देगी। मसारे का दरोबस्त, तलफ़्फ़ुज़ की रसीली फुआर और आवाज़ की बेस और पिच जैसे सुनने वालों की समातें रहन रख लेती है। यही काम बल्कि जो जौहर परवीन के पास भी था, मगर साइमा इस फन की एजरा पाउंड है। साइमा इस फन की एजरा पाउंड है। मजाल है कि ट्रोकी आयम इधर से उधर झोल खा जाए। जैसी अच्छी शायरा है बाखुदा इसकी खानदगी भी वैसी है, इख्तराही और नौजमालियाती किस्म की है। आप सबको अगर मौका मुयस्सर आए तो कम से कम एक दफ़ा इस नाबगा रोज़गार शायरा को ज़रूर पढ़ और सुन लें, ताकि मीडियोकर और शोहरत खान निसाई आवाज़ों से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाए, वरना रहे नाम अल्लाह। बहुत अच्छा। क्या कहने, मुझे ये मज़मून, ये तहरीर खूब पसंद है। एक रश्क की कैफियत पैदा हुई। एक तो मेरे लिए ये था कि उन्होंने पाउंड का हवाला दिया, अच्छा फिर ये सदाकारी और आवाज़, यानी कि शेर यूँ नहीं है कि आप अपना दुख बयान कर देते, असल में आपका लहजा उसे एक्सप्लेन करता है। अच्छा फिर कुछ लोग कहते हैं आपका हाफजा बहुत अच्छा है। नहीं, बात ये नहीं है कि हमारा हाफजा अच्छा है। हर वो शायर जो अपनी वारदात बयान करता है, वो शेर चाहे 20 साल पुराना हो, किसी को भी अपना गम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो हमेशा आपके साथ रहता है। तो वो वारदात, वो सच जब आप लोगों से शेयर करते हैं तो साइमा इसी तरह से पढ़ती हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम साइमा को सुने, उनका नमूना कलाम भी तो हम सुनेंगे, लेकिन कुछ गुफ्तगू क्यों ना साइमा से की जाए। जरूर। हमारे पास अभी कुछ वक्त है, अभी 5:30 हुआ है, 7:30 तक हमारे पास है, और मौजूद जो ऑडियंस है वो आज हम उनसे शायरी सुनेंगे सबसे, और साइमा से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो भी सुनाएं। यहाँ पे लोग नहीं जानते, हम तो आगाह हैं इनकी कंट्रीब्यूशन से। मैं चाहूँगा कि ये अपने सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, और इनकी एक किताब है धूप लूं हथेली पर, फिर गुलजार साहब पे की एक फ़िल्म है लेकिन, आप लोगों ने बड़ा अच्छा वन लाइनर था। खालिद अहमद मुझसे कहने लगे ये लेकिन फिल्म क्या है गुलजार साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये लगता है ये ज़िंदगी और मौत के लम्हे के दरमियान फंसे हुए शख्स की कहानी। हमारी वन लाइनर्स पे गुफ्तगू होती थी, गुलजार साहब से भी गुफ्तगू हुई, तो हमने गुलजार साहब से लाहौर तशरीफ़ लाए, हमारी बहुत मुलाकातें रहीं गुलजार साहब के साथ। तो गुलजार के पे उन्होंने ये किताब, इनके साथ इनके एक साथी थे, को ऑथर थे, दो भट्ट साहब थे और डॉक्टर आसमान तुर्की से। हाँ, वो एक तुर्की से थे। हम उस पर चाहेंगे कुछ उनसे बात करें। और फिर इनकी तीसरी किताब ज़ेरे तबा है, तो कहाँ से आगाज़ किया जाए? आप ये सफ़र जो है कैसे, देखिए माइक ऑन है। हेलो हेलो, अब ऑन जी, आवाज़। किताबों के सफ़र के बारे में पूछते हैं। पहले तो आपकी शायरी का सफ़र जो है ना उससे है। शायरी का सफ़र तो अभी हम रास्ते में भी परवेज़ साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि वही बात है, शायर या होता है या नहीं होता है। तो अगर मैं कहूँगी कि बचपन से ही मैं शायर थी, तो शायद मैं पैदाइश से पहले से ही शायर थी। रूह जो थी मेरी
वही शायरी के खमीर से शायद बुनी गई थी। लेकिन बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि मौसम मुझ पर बहुत असरअंदाज होते थे, ख़ासतौर से बारिश। 3-4 बरस की बच्ची बारिश होते हुए अगर उदास हो रही है या वो किसी उसमें एक कैफियत में है तो वहीं से मुझे ये बात याद है अब तक कि मैं बारिशों में उदास हो जाया करती थी और मुझे समझ भी नहीं आती थी कि ये क्या कैफियत है। उदासी को मैं जानती नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि अच्छा वो कैफियत तो ये थी। तो बहरहाल साथ कुछ घर में ख़ानदान में जो अदबी माहौल था और मेरे सगे मामू थे डॉक्टर सहीर फतेहपुरी, जिन्होंने मुश्ताक यूसुफी साहब की किताब का फ्लैप लिखा था। बहुत उनका ये जुमला बहुत ही मशहूर मारूफ है कि हम मज़ाक के अहले यूसुफी में ज़िंदा हैं। और अम्मी मेरी शायरा थी और बहुत अच्छा तरन्नुम था उनका, वो अपनी गज़लें हम बचपन से उनको सुनते थे। वालिद हमारे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाते थे कि बेटियों को ख़ास तौर से जो भी उनमें हुनर है उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश किया जाए। उनकी बहुत मदद और हौसला अफजाई थी। और उसके बाद ये कि मैं ये तो नहीं समझती कि अगर ख़ानदान में आपके शायर हैं तो आप में भी शायरी के जरासीम हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर ख़ानदान में आपके शायर हैं और इतने अहम शायर हैं तो उसका असर ज़रूर आपकी तरबियत पर और आपकी उस शायरी की नशोनुमा जो है ज़रूर उस पर बहुत असर पड़ता है। मुस्तफ़ा ज़ैदी जो मशहूर बहुत मारूफ शायर हैं हमारे, वो मेरे वालिद के बहुत करीबी कज़न थे। और मुझे याद है कि मैं तो छोटी थी, लेकिन जब भी उनकी बरसी का दिन आता था तो मुझे याद है कि मेरे वालिद सहन में पलंग पर बिछी पर ज़रूर उस रोज़ सुबह से लेकर हम उन्हें देखते थे उदास, और या फिर वो उनको याद करके रोया करते थे। तो ये कुछ घर का अदबी माहौल था। वालिद हमारे जो थे शामों में हम सबको फ़ारसी के अशार, उनकी फ़ारसी बहुत उम्दा थी, सुनाया करते थे। और हम सबसे कहते थे कि एक एक शेर सुनाएं, सब बहन भाई, तो हम उनको शेर सुनाते थे। उसमें गलती होती थी तो फिर वो उसकी निशानदेही, ये सब माहौल था। फिर जब ज़रा बड़े होने लगे तो अपने मामू साहब जो थे हमारे डॉक्टर सहीर फतेहपुरी, उनकी लाइब्रेरी थी और उनके यहाँ ये प्रोफेसर तौसीफ तबस्सुम, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक और प्रोफेसर जाफ़र हुआ करते थे अस्कर माल कॉलेज में उर्दू के। ये सब लोग शाम में सहन में उनके बैठा करते थे और उस वक्त की अदब के जो भी नज़रियात थे या जो तहरीक चल रही थी या जो सियासी माहौल था उस पर उनकी गुफ्तगू थी। समझ तो मुझे कुछ ऐसी ख़ास नहीं आती थी, मैं उस वक्त छोटी थी, लेकिन वो कानों में पढ़ते 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 अल्फाज या उनकी लाइब्रेरी में पुराने फ़नून और ये सब कुछ पल्ले पड़े या नहीं, लेकिन वो एक शौक़ था अंदर से गुफ्तगू थी, तो मैं बस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करती थी। और फिर 8वीं क्लास में मैंने पहला शेर का, 6ठी क्लास में मैंने पहला बाकायदा शेर का अपने खिदमत किया और वो मैंने अपने भाई के लिखा। बस फिर इस तरह से ये सफ़र चलता रहा। कॉलेजेस में जैसे आपको मालूम है कि अदबी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, अदबी बैतबाजियाँ, इन सब में, और हमेशा जाना और अपने कॉलेज के लिए ऑल पाकिस्तान ट्रॉफ़ी अव्वल इनाम के साथ तो कभी नहीं लिया, वापस आना। और इस तरह से ये फिर मैं जब पढ़ी थी FSC में थी तो शबनम शकील साहिबा मेरी उर्दू की उस्ताद भी थी, तो उन्होंने भी वाकई में बहुत मुझे इनकरेज किया और हमेशा भेजा करती थी मुझे मुशायरों में। घर पर भी हमारी बात गुफ्तगू होती थी, बुलाया करती थी। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ कहना, फिर फ़नून का दौर आया। फिर यहाँ पर मैं अहमद अदीम कासमी साहब को याद करूँगी और इन अल्फाज के साथ कि अब तक मेरी जिन उदबा और ज़ौमा से इस हवाले से मुलाकात हुई है, मैंने उनसे बेहतरीन इंसान, उन जैसा हौसला अफजाई करने वाला और दस्त शफ़क़त रखने वाला इंसान, सिखाने वाला इंसान नहीं देखा। क्योंकि मुझे याद है कि मैं किसी कैफियत में थी और मैं शायरी तो करती थी लेकिन कहीं शायरा नहीं होती थी और ना ही मैं कहीं आया जाया करती थी मुशायरों में। बस मैं किसी कैफियत में थी, मैंने कुछ गज़लें कहीं और मैंने उसी कैफियत में फ़नून का कहीं से पता देखा और उनको वो मैं होती थी तरबेला की तरफ, वहीं पर कि मेरी पैदाइश और मेरे वालिदैन की जॉब्स भी वहीं पर थी, वहीं सेटल थी। तो वो मैंने उनको लाहौर भेज दिया और मेरा ख्याल है कि शायद उनको मिली ही होगी और उसी वक्त उन्होंने जवाब तहरीर किया होगा, क्योंकि चौथे दिन मेरे पास उनका
जब आप चौथे या पांचवें दिन क्या डालते क्या थे और उन्होंने उसमें बहुत तारीफ की और बेटी तुम्हारे यहाँ बहुत जौहर है और ये तुम हमें भेजो, और फिर मैं फ़नून में छपना शुरू हुई। कहने का मतलब ये है कि उनको वो मैं एक दूर दराज इलाके में थी, वो मुझसे कभी मिले भी नहीं थे, सिर्फ शेर को देखा उन्होंने और उन्होंने मेरी गज़लें फिर फ़नून में, और मेरे पास उनके बहुत सारे खतूत हैं जिनमें वो लिख रहे हैं कि अब तक तुम्हारी गज़ल नहीं पहुँची, हमने फ़नून को रोका हुआ है, इस तरह की। और बहुत ज़्यादा फिर सालगिरह एम्बेसडर होटल में हुआ करती थी उनकी, तो कई दफ़ा उनके लिए फिर मैं लाहौर जाया करती थी, फिर वहीं पर अमीर से और मंजर भाई से और खालिद अहमद साहब से और नजीब अहमद साहब से और मंसूरा तो हुआ ही करती थी, सबसे बहुत मुलाकातें रहीं, वहाँ से भी लिखने पढ़ने का हमारा ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। लेकिन इस सारे माहौल के अलावा जो एक चीज़ आपके लिए मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी होती है वो आपकी अंदरूनी खलिश है, जो हमेशा से मैंने अपने अंदर महसूस की और मुझे मालूम नहीं था कि ये किस चीज़ की का कर्ब है, ये क्या चीज़ मुझे परेशान या बेचैन रखती है, आया क्या वो कोई महबूब है, लेकिन वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। मेरा मानना ये है कि आपको कहीं जब भी आपको महसूस होता है कि ये शायद इस वजह से मैं बेचैन हूँ या ये महबूब है, लेकिन आपको कहीं उसकी आंखें मिलेंगी, कहीं मुस्कुराहट, कहीं लहजा, लेकिन आपको मुकम्मल महबूब नहीं मिलता। जो मैं उसको हमेशा सर्च ऑफ अननोन कहती थी, एक नामालूम का सफ़र, नामालूम का इंतज़ार, और हमेशा फिर अगले सफ़र पे चलना, अगले सफ़र पे, क्योंकि वो लगता था कि नहीं यहाँ जो हम पहुँचे तो दरअसल ये हमारी मंजिल नहीं है, वो तो कहीं कोई और ही है। और अब जाके इस उम्र में मुझे ये बात समझ में आई है कि ये जो एक अंदरूनी सफ़र हमारे साथ साथ चल रहा होता है वो दरअसल हमें हमारा ही इंतज़ार होता है, और जब हम खुद को जान लेते हैं, जब हम खुद से हम कलाम हो जाते हैं तो फिर सुकून आ जाता है, फिर हमें समझ आ जाती है कि वो सर्च ऑफ अननोन क्या थी एक्चुअली, वो हमारे अंदर का ही सफ़र होता है। बहरहाल हर किसी का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ ऐसे ही था और यही चीज़ मेरे शेर में है, और यही चीज़ है कि जब हम एक महदूद दायरे से नामहदूद होते हैं, जब हम खुद को जानने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम अपने उस अंदरूनी सफ़र